تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے حوالے سے بات کریں گے۔ مظفر گڑھ میں 5ویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر سردار عبدالحی دستی نے فلیگ آف کر کے سٹارٹ کیٹیگری کی ریس کا آغاز کر دیا ہے۔ آج دوسرے مرحلے میں 51 جیپ ریسرز حصہ لیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد مقصود سے۔ مقصود بتائے گا اس حوالے سے۔ بالکل تھل جیپ ریلی 5ویں تھل جیپ ریلی کا باقاعدہ آغاز جو ہو چکا ہے، اس کا آج دوسرا مرحلہ ہے جس کا آغاز کیا گیا ہے، اور 105 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے جس پہ جیپیں جو فراٹے مار دی اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عبدالحی دستی نے فلیگ آف کر کے اس کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اور میں بتاتا چلوں جو پہلی گاڑی تھی تیمور خواجہ کی، اس نے جو ہے وہ پہلی گاڑی اس ٹریک سے روانہ ہوئی جو کہ لیا کے مقام پہ چبارہ پر اختتام پذیر ہوگی۔ اور یہاں پہ 51 گاڑیاں ہیں جو سٹاک کیٹیگریز کی ہیں، جن میں 49 کیٹیگریز میل ہیں، جبکہ دو جو ہیں وہ فیمیل کیٹیگریز کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس میں مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں۔ 105 کلومیٹر کا لمبا یہ ٹریک ہے، 190 کلومیٹر کا یہ ٹریک تھا جس کو کرونا کے باعث جو ہے 105 تک ہی محیط کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس میں موجود ہے مظفر گڑھ کے رپورٹر عامر ڈوگر، ان سے بھی مزید جانتے ہیں۔ عامر بتائیے گا، کل سے آپ اس ایونٹ کی کوریج کر رہے ہیں، کیا کہیں گے، کس ریسر کو آپ دیکھ رہے ہیں جیتتا ہوا، اور آج ایک راؤنڈ ہے، ایک سٹاک کیٹیگری کا راؤنڈ ہے، خواتین کا کیٹیگری راؤنڈ ہے، کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مقصود بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کون جیتے گا یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج سٹاک کیٹیگری میں 51 گاڑیاں جو وہ حصہ لے رہی ہیں، جن میں 2 جو ہیں وہ ویمن کیٹیگری کی ہیں، جن میں سلمہ خان اور ایک جو ہے وہ ٹسنا پٹیل کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑیاں جو اینڈ میں روانہ ہوں گی، جبکہ 49 گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ سٹاک کیٹیگری میں یہاں سے روانہ ہوں گی۔ اب تک یہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر اس وقت موجود ہے چھانگا مانگا ٹیلا کے مقام پر 49 گاڑیوں میں سے 32 گاڑیاں اس وقت جو ابھی تک روانہ ہو چکی ہیں، جبکہ اب جو ہے وہ 33ویں گاڑی ٹریک سے روانہ ہونے جا رہی ہے۔ لیا کے مقام پر یہ سنگل ٹریک اس بار رکھا گیا کرونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ گزشتہ سال یہ ٹریک جو تھا 190 سے زائد کلومیٹر کا تھا، مگر اس بار جو 105 کلومیٹر تک اس کو محدود کیا گیا۔ عامر یہ بتائیے گا، اس میں جو ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے کہ بائک ریسنگ بھی یہاں پہ کروائی جائے گی، جس کا آج کا سنایا گیا تھا لیکن وہ کینسل ہو گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بائک ریسنگ میں یہ کہ پہلی بار بائک ریسنگ کا ایونٹ جو اس میں انکلوڈ کیا گیا۔ کل باقاعدہ طور پر اس کی بائکرز کی جو وہ رجسٹریشن ہوگی، اور بائکرز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس کو آج کے بجائے کل پر جو وہ رکھا گیا، اور کل صبح 9:30 بجے باقاعدہ طور پر بائک ریسنگ کا ایونٹ جو وہ سٹارٹ ہوگا۔ 2.5 کلومیٹر کا یہ ٹریک بنایا گیا ہے، جو کہ بڑی گاڑیوں کے لیے، سٹاک اور پری پیڈ گاڑیوں کے لیے کوالیفائنگ گراؤنڈ کا جو ٹریک رکھا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بائک ریسنگ ہوگی اس کو بھی اسی ٹریک پر جو دوڑایا جائے گا۔ آج صبح جو ہے وزیر اعلیٰ کے مشیر عبدالحی دستی اور چیئرمین پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ سہیل ظفر چیمہ کی جانب سے فلیگ آف کر کے اس ریس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا، اور ابھی تک تمام افسران یہاں پر موجود ہیں۔ عامر مجھے یہ بتائیے گا، جو ونر ہوں گے، رنر اپ ہوں گے، ان کے لیے کیا کیش پرائزز کیا ہوں گے؟ ونر کے لیے ہر سال کی طرح اس بار بھی 5 لاکھ روپے کا فرسٹ پرائز جو وہ رکھا گیا، اور کل شام 8 بجے جو ہے مظفر گڑھ کے فیصل اسٹیڈیم میں اختتامی تقریب جو وہ رکھی جائے گی، وہیں پر انعامات جو ان کو دیے جائیں گے۔ جی بالکل، یہ 105 کلومیٹر کا ٹریک جس پہ جیپیں اس وقت فراٹے مار رہی ہیں، 30 سے زائد گاڑیاں اس وقت یہاں اس ٹریک پہ رواں دواں ہیں، اور کرونا SOPs کے باعث 190 کلومیٹر کو کم کر کے 105 کلومیٹر کیا گیا ہے، جس پہ اس سے یہ جو جیپیں ہیں وہ رواں دواں ہیں، اور لیا کے مقام پہ چبارہ پر یہ اختتام پذیر ہوں گی۔ جی تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کا آج دوسرا روز ہے۔ سٹاک کیٹیگری کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ محمد مقصود آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ دوسری جانب لیا چوبارہ کے مقام پر 5ویں تھل جیپ ریلی کا دوسرا روز، سٹاک کیٹیگری کی 2 گاڑیاں اختتامی پوائنٹ پر پہنچ چکی ہیں۔ تیمور یوسف 1 گھنٹہ 13 منٹ 5 سیکنڈ اور عقیل عثمان 1 گھنٹہ 18 منٹ 33 سیکنڈ میں پہنچے ہیں۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ عاشر بتائے گا۔ لیا تھل جیپ ریلی کا آج دوسرا روز ہے، اور دوسرے مرحلے میں باقاعدہ طور کے اوپر جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہاں پر بھی گاڑیاں پہنچنا شروع ہو چکی ہیں۔ پہلی گاڑی یہاں پر پہنچ چکی ہے، تیمور یوسف صاحب یہاں پر پہنچے ہیں، 1 گھنٹہ 13 منٹ 5 سیکنڈ میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ ان سے مزید بات کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ تیمور بھی بتائیے گا کیسا ٹریک رہا، اوورآل کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ٹریک بہت اچھا تھا، میری پہلی دفعہ تھی، پہلے نکلے اب فنش کیا، اب انتظار ہے باقی گاڑیوں کا۔ ٹریک اچھا تھا، ٹیکنیکل ٹریک ہے، ٹرنز والا ہے، ڈرائیورز ٹریک ہے، تو بس فرسٹ گول تھا فنش کرنا، اب آگے دیکھیں۔
जैसे रहते चलिए तैमूर भाई, बेस्ट विशेस, दुआ करते हैं आपके लिए, अल्लाह पाक बेहतरी करे। मजीद गाड़ियां भी पीछे हैं, मजीद पहुंचनी है गाड़ियां। इस टाइम पहली गाड़ी यहां पर पहुंची है तैमूर साहब की, और यहां पर अब एंडिंग पॉइंट है यहां पर जीप रैली का, और बाकायदा तौर गाड़ियां एंडिंग पॉइंट पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। आशिर अशफाक आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, लिया में 5वीं थल जीप रैली के मौके पर सहरा में थल मेले के दूसरे रोज आज रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। थल मेले में झूमर डांस, घोड़ा, ऊंट डांस समेत म्यूजिकल प्रोग्राम्स मुनक्किद होंगे। तो आपको बता रहे हैं, लिया में 5वीं थल जीप रैली के मौके पर सहरा में थल मेला और थल मेले के दूसरे रोज आज रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। हमें ज्वाइन किया है जाहिद सरफराज ने। जाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 5वीं थाल जीप रैली के मौका पर लिया के अंदर सजाया जाने वाला थाल मेला जो है उसका भी आज दूसरा रोज है, और 5वें थाल मेले के मौका पर आज दूसरे रोज लिया के अंदर मकामी छुट्टियां, जिसके पास जो शौकीन हैं, जो मेला को लुत्फानंदोज करने वाले अफराद हैं, वो यकीनन छोटे बड़े मर्द और खवातीन की कसीर तादाद जो यहाँ पर मेले के अंदर पहुंच रही है। इससे अगर बात की आज मेले के अंदर मुख्तलिफ रंग जो प्रोग्राम है उनका इनेकाद किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मेला का जो इनेकाद है वो शुरू हो जाएगा। इस वजह से अगर बात की तो आज जो है यहाँ पर जो स्ट्रीट तलबा तालबात के नाम से परफॉर्मेंसेस, साथ साथ झूमर डांस है, उसके साथ अगर बात की तो यहाँ पर घोड़ा और ऊंट डांस का इनेकाद भी किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर रस्सा कशी दीगर जो खेल मुकाबले वो भी किए, उनका इनेकाद भी किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन आपको इस तरह दिखाएगा, यहाँ पर स्टेज की तैयारी का अमल है वो जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी यहाँ पर तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर आज इस थाल मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, ताकि जो लिया का जो थाल का एक बड़ा इवेंट है थाल मेला और थाल जीप रैली, उसको भरपूर अंदाज से एंजॉय किया जा सके। कुछ हमारे साथ यहाँ पर शौकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं और इस मेले को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम इधर से नजदीक से बुरली अड्डा से ही आए हैं, बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये जो है ना 5वां मेला है थाल जीप रैली, और बहुत ही लुत्फ आ रहा है। बहुत से लोग जो है ना बहुत दूर दराज से आते हैं यहाँ लुत्फ उठाने के लिए। आपने कौन कौन सी चीजें देखी हैं? हमने अभी वो उधर बाजार कुछ वहाँ लुत्फ अंदोज हुए हैं। इधर कल रस्साकशी हुई थी, वो भी हमने देखा है। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पर इन का यही बताना है कि उन्हें बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखी हैं और थाल मेले से भरपूर अंदाज से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ वोकला हजरात भी आए हुए हैं जो इस थाल मेले को एंजॉय करें, उनसे बात भी करते हैं। अंकल बताइएगा, थाल मेले को एंजॉय करने के लिए पहुंचे, कैसा है इस बार? करने के लिए सब कुछ ठीक है, मगर इन्होंने पार्किंग बहुत दूर बनाई हुई है। यहाँ पे भी पार्किंग बन जाती तो लोगों को एंजॉय करने में ज्यादा मजा आता, मगर वहाँ पे इन्होंने पार्किंग बना के लोगों को जलील कर रहे हैं ये लोग। ये फरमाइएगा, थाल मेले पे कौन कौन से इवेंट हैं ऐसे जो आपको दिलचस्पी का बायस बन रहे हैं? फिलहाल तो यही देखने के लिए आए हैं जो रेस है। थाल मेले के ऊपर भी मुख्तलिफ इवेंट्स हैं आज, हमें उसका पहले पता नहीं है। जी बिल्कुल, ये भी पहुंचे हैं और इनका यही कहना है कि जैसे थाल मेला शुरू होगा रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। जाहिद सरफराज आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोट में ठिकानुल आशिकीन अजीम सूफी बुजुर्ग के सालाना 123वें 3 रोजा उर्स का पहला रोज सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा कहते हैं कि इस्लाम के फरोग में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का अहम किरदार है। कोरोना के बायस उर्स की महदूद तकरीबात में SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा उनका मजीद क्या कहना है। जी बिल्कुल, कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना उर्स का आज पहला रोज है। पहले रोज सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने मजार को गुस्ल दिया है। इस वक्त महफिल समा हो रही है। इसी हवाले से जानते हैं उनसे, सर कोरोना है लेकिन उसके बावजूद भी उर्स की तकरीबात जो हैं वो जारी हैं, मगर महदूद कर दी गई हैं। इसके साथ साथ देखा यह जा रहा है कि जो शुरका होते हैं हर साल यहाँ पे तिल धरने तक की जगह नहीं होती, इतने यहाँ पे लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, लेकिन इस बार जो अफराद है उनकी तादाद भी यहाँ पे महदूद है। किस तरह से तकरीबात हो रही हैं, SOPs पर किस तरह से अमल किया जा रहा है, और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का जो पैगाम है वो क्या है? जी, अर्ज ये है कि आज हम 123वें उर्स की तकरीबात को अभी गुस्ल दे के हमने शुरू किया है। हज़रत सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक इंटरनेशनल फेम की हस्ती हैं। उनकी पोइट्री जो है 7 ज़बानों में है, और मैंने दुनिया में जहाँ भी विज़िट किया है वहाँ पे ख्वाजा साहब पहले से मुतारिफ थे। और आज ये जो सूरत हाल है ये पूरी दुनिया में है। आपने देखा होगा कि मक्का और मदीना में भी पाबंदी लगी रही है, वहाँ तवाफ़ और उम्रे पे भी पाबंदी थी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम कितना हफ्तों तक बंद रहा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की हम समझते हैं कि
ये जो गुंजाइश पैदा की गई है कि रसूमात की अदायगी हम कर सकते हैं और सेलेक्टिव गैदरिंग भी कर सकते हैं, तो ये ना होने से तो बहुत बेहतर है जी। तो आज डिसा भी खुद आए हुए थे, तो ख्वाजा साहब कोई 1 साल के लिए तो नहीं है ना 2 साल के लिए। आप ये देख लें कि दाता साहब को 1000 साल हो गया है, रश में कोई कमी तो नहीं आई ना। तो ख्वाजा साहब ने भी एक बड़ा लंबा अरसा, जब तक ये दुनिया कायम है ख्वाजा साहब भी कायम रहेंगे। तो 2-4 अगर ऐसे आ जाते हैं दरमियान में अप्स डाउन, तो मेरा ख्याल है माइंड करने वाली बात नहीं है। तो रसूमात जारी रहेंगी और तमाम प्रोग्राम्स हमारे जारी रहेंगे, लेकिन गैदरिंग का जो आप बता रहे हैं तो वो तो हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह पे एहतियात हो रही है। अब रहा ख्वाजा साहब के पैगाम का ताल्लुक, तो हर सूफी का एक ही पैगाम है, इंसान की कदर करो, मज़हब, मसलक, इलाका, ज़बान, नस्ल से बुलंद होके जो है मखलूक खुदा की कदर करो और रवादारी, बर्दाश्त और भाईचारे की तमाम सूफिया कराम ने यही दर्स दिया है जी। तो ख्वाजा साहब भी उनमें से, उस चेन में से आखिरी जो सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं मौलाना ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो उनका भी वही पैगाम था जो 1000 साल पहले दाता साहब को था, जो 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था। तो उसी पे ये लोग अमल पैरा थे और सदियां गुजरने के बाद भी उनके रुश्द में, उनके फैज़ में, उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, बढ़ती जा रही है। और ये मैं एक बात दावे से कहता हूँ बड़े बड़े फोरम्स में भी, कि कौन कहता है कि जी दरबारों का जो है करिश्मा ख़त्म हुआ है या अट्रैक्शन ख़त्म हुई है या ये जो दरबार है इन पे लोगों ने आना कम किया, कतन ऐसी बात नहीं है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर उर्स पहले उर्स से बढ़ के होता है। अभी तो ये चूंकि कोरोना का मामला है, वरना यह है कि दरबारों के साथ लोगों की अटैचमेंट, और मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना होने के बावजूद भी दरबार आबाद है। तो ये इन मज़ारात का करिश्मा है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक कोरोना के बाइस महदूद पैमाने पर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज हो गया है। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे। डेरा गाजी खान में बड़ी बैठक मुतवक्के। जनूबी पंजाब में मुतवक्के दूसरा काबीना इजलास डीजी खान में होगा। इंतजामिया से काबीना के इजलास के लिए मुकामात की तफसील मांग ली गई है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। जी बिल्कुल, सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का दूसरा इजलास जनूबी पंजाब में अब डेरा गाजी खान में होना मुतवक्का है और इस इजलास के लिए तमाम तर तैयारियां इंतजामिया के लिए खास तौर पर शुरू कर दी गई हैं और इस बात की बात गश्त भी जो है वो शहर के अंदर मुख्तलिफ हलकों में भी इस वक्त सुनाई दे रही है। हमारे ज़राए भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि आइंदा इजलास जो लाहौर की बजाय वो डेरा गाजी खान में होगा, दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मुतवक्का है, जिसमें काबीना के तमाम अफराद जो है वो डेरा गाजी खान आएंगे। यहाँ पर ही इजलास मुनक्किद होगा और यहीं पर ही बड़े बड़े फैसले होंगे, जिसकी सदारत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुद करेंगे। इस हवाले से इंतजामिया जो है वो मुकामात की तलाश में उसने शुरू कर दी है और इस सारे प्रोसेस में 3 अहम इमारतें डीजी खान में बड़ी बैठक मुतवक्के है। ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे। आगे आप बढ़ते हुए आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान का देरीना मसला हल हो गया। यूईटी मुल्तान को अलॉट होने वाली मुकम्मल 210 एकड़ जमीन को कब्जा मिल गया है। इसी हवाले से आप मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली रियाज से अली बताएगा। चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान का जो दरीना मसला है वो हल हो गया है। वो ये है कि गुज़श्ता कई सालों से यूईटी मुल्तान को जो ज़मीन अलॉट की गई थी वो 210 एकड़ अलॉट की गई थी, जहाँ पर नया कैंपस बनना था, जो कि मुल्तान के नुमा इलाके बहावलपुर रोड अड्डा लाड़ के करीब जो वाक़या थी। तो लेकिन उसके गुज़श्ता 2 साल से मसला चला आ रहा था कि कुछ इंतजामी वजूहात की वजह से जो ज़मीन अलॉट 210 एकड़ की गई थी उसके बदले उनको 150 एकड़ दी जा रही थी। ताहम अब एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि यूईटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान को जो है 210 एकड़ जो मुकम्मल जमीन है वो अलॉट कर दी गई है। इस सिलसिले में गुज़श्ता चंद माह कबल ये यूईटी मुल्तान को जो PC1 है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से अप्रूव किया गया, जिसके बाद उनको जो एक जमीन का कब्जा यूईटी मुल्तान को मिल गया है। अली रियाज आप तफसीलात बता रहे थे। मियावाली में पीर आदिल शाह मस्जिद के सामने सीवरेज पानी जमा हो गया है। मस्जिद में कुरान की तालीम हासिल करने वाले बच्चों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा।
बिल्कुल पीर आदिल शाह दरबार के सामने जमा सीवेज पानी पर बच्चे भी आज एहतजाज कर रहे हैं और बच्चे यहाँ साथ ही जो मस्जिद है वहाँ पे कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं और बच्चे यहाँ आज रोड पर निकल आए हैं, इन्होंने एहतजाज किया है। इस हवाले से बच्चों से बात करते हैं। अच्छा बेटा बताइएगा क्या कहेंगे, आपको किन मुश्किलात का सामना रहता है? जी हम ये हमारा मदरसा है साथ, हम इधर कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते हैं और ये बिल्कुल साथ सामने गंदगी का पानी खड़ा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। पानी सारा बाहर आ जाता है, सड़क पे आ जाता है, पैदा होती है, चलने में मसला होता है, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जैसे नमाजी आते हैं, हम पढ़ने आते हैं, सब का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि यहाँ से कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह गुजरता है तो उससे भी मतलब उससे छींट उड़ के ऊपर कपड़ों पे आ जाते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। मेहरबानी करके हमारे इस मसले को हल किया जाए। जी बहुत मुश्किलात का सामना है इस मसले के हल का मुतालबा किया जा रहा है, बच्चों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब कोटद्दू पीतल रोड पीर बशीर मार्केट में गंदगी के ढेर लग गए हैं। शहर का तमाम कूड़ा करकट रिहायशी इलाके में फेंका जाने लगा है। मजीद बात कर लेते हैं तैमूर अथर से। तैमूर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्थर रोड पीर बशीर मार्केट में। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के दरमियान में कचरा कुंडी का मनाजर पेश कर रहा है। जितना इस इलाके की गंदगी होती है उसको इस जगह पर जमा कर दिया जाता है। म्यूनसिपल इंतजामिया यहाँ से इस गंदगी को साफ नहीं कर रही। इस कूड़ा करकट की वजह से बदबू उठती है, हवा आती है, करीबी घरों को जाती है और इसी के साथ जो मार्केट्स हैं वहां पर भी बदबू जाती है। काफी परेशानी है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इस बारे आगाह किया लेकिन वो नोटिस नहीं लेते। मेरे से यहाँ के कुछ रिहायशी मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, रिहायशी इलाके में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पूरा कचरा जो है यहीं पे फेंका जा रहा है, क्या कहते हैं, क्यों नहीं इसको साफ किया जाता? सर एक्चुअली एक महीना तो ये बल्दिया का कोई भी वर्कर यहाँ पे सैनिटरी वर्कर आता नहीं है, पूरा मोहल्ले का बुरा हाल है। इसके अलावा अगर महीने बाद 2 बार कचरा उठाने के लिए आते भी हैं तो ये शहर के दरमियान में यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। इसी की वजह से पूरा मोहल्ला इफेक्टिव है और पूरा मोहल्ला बीमारियों में है। छोटे छोटे बच्चे। मुझे बताइएगा गलियों की क्या सूरत हाल है? गंदगी के ढेर लगे हुए जगह जगह, किस तरह यहाँ पर गुजार रहे हैं, क्या कहते हैं? बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है यहाँ। कई बार कह दिया है, एसी साहब को भी कहा है, सीओ साहब को भी कहा है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। इससे पहले मारियोने साहब थे, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, वो तकरीबन हमारे मसाइल हल करते थे, लेकिन जो न्यू आए हैं उन्होंने हमारी एक तक नहीं सुनी। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। नए अफसरान की वजह से शहरियों को गंदगी के ढेर मौजूद हैं। अहले इलाका सरापा सवाल हैं। तैमूर अथर आप तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं मियां चन्नो मोहसिन वाल का मरकजी कब्रिस्तान मसाइल से दो चार है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने से आवारा कुत्तों ने कब्रों में बसेरा कर लिया है। बात कर लेते हैं फखर जमान से। फखर बताइएगा वहां की सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नो के नवाही इलाका मोहसिन वाल के मरकजी कब्रिस्तान में, जहाँ पर 4 दीवारी ना होने के बायस जो है आवारा कुत्तों ने जो है वो बसेरा किया हुआ है। कब्रिस्तान में जगह जगह पे कब्रों को जो है वो बिल बना के कुत्तों ने अपना घर बनाया हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ अहले इलाका। सर बताइएगा इस कब्रिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कब्रिस्तान के हवाले से यह है कि भी गंदा नाला बनया सड़क के नाल, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੋਏ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਆ ਗੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਆਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ। ताकि साड़ी अहला हुकूमत नूं पंजाब नूं ये अपील है कि 4 दीवारी सड़क दे नाल नहीं है, ये 4 दीवारी सानू करके दी जाए, नाला साफ किया जाए। जी बिल्कुल। अहले इलाका मरकजी कब्रिस्तान मसाइल से दो चार है। फखर जमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान में पंजाब बार के सालाना इंतखाबात वकला उम्मीदवारों की जानिब से कैंपेन जारी है। मुल्तान में 4 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार हाफिज नवीद अख्तर की वकला से वोट की अपील। मजीद बात कर लेते हैं माहिर इमरान से। इमरान बताएगा वकला की जानिब से तैयारियों का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल। पंजाब बार के इलेक्शन की बात करें तो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 5 साल ये कैंपेन थी और ये जब इलेक्शन के आखिरी 2 साल होते हैं उसमें कैंपेन का एक सिलसिला जारी होता है और इस हवाले से बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि
जो वकला हैं वो अपने उम्मीदवारान को जो है अपने सपोर्टरान अपने उम्मीदवारान के लिए जो है तगोदो भी करते हैं और अब वो मरला आ चुका है जिसमें ये नताइज जो हैं वो बिल्कुल सामने होंगे। मुल्तान की 23 जो उम्मीदवारान हैं 4 नशिस्तों के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। इन उम्मीदवारों में हाफिज नवीद अख्तर वो भी मेंबर पंजाब बार के हैं, मुल्तान सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सीरियल नंबर 12 है। सीरियल नंबर 12 आपको मिली, कहां तक कैंपेन पहुंची, किन 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 तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार्स में आप पहुंचे, क्या मैसेज देना चाहें? 28 नवंबर को पंजाब बार का इलेक्शन होने जा रहा है और हमने जनाब कैंपेन पूरे 4 इजला हैं हमारे और टोटल हमारे 13 बनते हैं स्टेशंस, तो हर जगह जाके अपने काबिल एहतराम वकला साहबान को रिक्वेस्ट की है। तो अभी फाइनल मरहले में हमारा इलेक्शन जो है दाखिल हो गया है, तो अभी हमारी कोशिश है कि हर उम्मीदवार की अपनी अपनी हर जगह को कोशिश कर रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। अगर आप मुंतखब होते हैं तो क्या प्रायोरिटी होगी? पंजाब बार के इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। माहिर इमरान आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डीजी खान में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है। डीपीएस स्कूल के तलबा की जानिब से शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई है। इस हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। डेरा गाजी खान में बड़े स्कूल की तरफ से बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये रैली इस वक्त मेन कॉलेज रोड की तरफ गामजन है और इसमें एक बड़ी तादाद में डीपीएस स्कूल जो कि सरकारी निजी स्कूल है उसके बच्चे भी शामिल हैं। हमारे साथ मेजर आजम साहब मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल के। कितनी बड़ी शान है आप सल्लम की और इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इस रैली को कवर किया। मैं ये जो हमने हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाया है, हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमारे नबी की शान इतनी ज़्यादा है कि हम इसमें किसी भी आदमी को एक आयोटा के बराबर भी हम कोई बात कहने की इजाज़त नहीं देंगे। हम उनकी शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मुल्क का एक एक बच्चा, कलमा पढ़ने वाला एक एक मुसलमान उनकी शान पे कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार है। हमारे खून का एक एक कतरा उन पे निशावर है। हम किसी भी गैर मजहब को ये इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मजहब सिर्फ और सिर्फ सलामती का मजहब है। हम किसी दूसरे के नबी को बुरा नहीं कहते, किसी दूसरे के दीन को बुरा नहीं कहते और यही दर्स हम उनको देना चाहते हैं कि कोई भी मजहब किसी दूसरे नबी के बारे में गुस्ताखी की इजाजत नहीं दे सकता। अगर वो इस चीज पे गौर करे तो उनके नबियों ने मेरे नबी की अमामत में नमाज पढ़ी, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। उनको अपने इमाम की इज्जत करनी चाहिए, नबी की इज्जत करनी चाहिए और हम ये यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल जी, आप सल्लम पर हमारी इस्लाम सलामती और अमन का मजहब है। ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से थाना सिटी खानपुर में महफिल नात का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ज़िशान डोगर से। ज़िशान बताएगा। जी बिल्कुल, थाना सिटी में वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ असद सरफराज की हदायत पर आज महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया। इस महफिल के मिलाद का इनाकाद एसएचओ सैफुल्लाह कुरैशी ने किया। इस वक्त एसएचओ सैफुल्लाह कुरैशी मौजूद है। इस हवाले से हम बात करते हैं। सर बताइएगा, आज महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया है डीपीओ के हुक्म पर, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं, सर का हुक्म मिला था कि ये हफ्ता जो सरकार का मनाया जा रहा है इसमें आप भी थाना सिटी में महफिल नात का बंदोबस्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर डीपीओ रहीम खान असद सरफराज साहब के हुक्म पर महफिल नात हुई। माशाल्लाह रूह परवर मंजर था। हम बहुत खुश हैं कि थाने के अंदर सरकार का जिक्र को 2-2.5 घंटे चला है। मेरे डीएसपी साहब फारूक जावेद साहब और मेरे बाकी थाने के तमाम मुलाजमान अफसरान ने शिरकत की है, नोटेबल बाकी हजरात ने। मैं सबका मशकूर हूँ जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये हमारी काबिज सरकार की बारगाह में कबूल फरमाए। जी बिल्कुल, जैसा कि ज़िशान डोगर आप महफिल नात के इनेकाद के हवाले से बता रहे थे। आपको बताएं, बहावलनगर में मुल्क भर में 30 नवंबर से पोलियो मुहिम का आगाज होगा। पोलियो मुहिम 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा हेल्थ के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ट्रेनिंग जारी है। मजीद बात कर लेते हैं कासिम अली शेख से। कासिम बताएगा।
मुल्क भर की तरह बहावन नगर भी 30 नवंबर से जो है वो कम पोलियो मुहिम शुरू होने जा रही है, जिसके लिए जो ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। महकमा हेल्थ के जनाब ज़ेर एहतमाम जो है वो पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है। मैं सिर्फ मौजूद हूँ मास्टर ट्रेनर शहजाद साहब से, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि कितना रोज़ा जो है ये पोलियो मुहिम है और इसके लिए कितनी तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं और अब तक जो है वो ट्रेनिंग किस तरह आप करा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। ये जो ट्रेनिंग हम पोलियो की करवा रहे हैं यूसीएमओज की, एरिया इंचार्जेस की, ये 2 दिन की ट्रेनिंग है और आगे जो हमारी पोलियो कैंपेन आ रही है वो 5 दिन की कैंपेन है जो 30 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। और ये पूरे मुल्क भर में कैंपेन की जा रही है और इसमें हमारा पोलियो की जो कैंपेन करने का मकसद ये है कि हर बच्चे को हम पोलियो के जो कतरे उनको 2 मियारी कतरे पिलाएं ताकि उन बच्चों में बीमारी के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त पैदा हो और वो इस बीमारी से बच सकें। तो ये भी बताइएगा इस ट्रेनिंग में कितने शुरा जो है शामिल है, 2 रोज़ा ट्रेनिंग में कितने लोग शामिल होंगे? ये जी हमने अपने यहाँ पे तहसील लेवल पे जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इसमें हमारे जो यूसीएमओज हैं, एरिया इंचार्जेस हैं, उनको हमने यहाँ पे बुलवाया है। उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पे और वो फिर जाके अपने यूनियन काउंसिल्स में जाके अपनी अपनी जो है मोबाइल टीम में, जो फिक्स टीमें और ट्रांजिट टीमों को जाके ट्रेनिंग देंगे। जी बिल्कुल, ये थे मास्टर ट्रेनर शहजाद साहब जो कि बता रहे थे कि पोलियो मुहिम जो है वो पूरे मुल्क की तरह बहावन नगर में भी अब जो 30 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक जो वो जारी रहेगी, जिसके लिए जो है बड़े पैमाने पर पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग जारी है। कासिम अली शेख आप तफसीलात बता रहे थे। बुलेटिन में बात कर लेंगे मुल्क के बहादुर सपूतों के हवाले से। दुनियापुर के नवाही इलाके चक नंबर 382 WB का पाकिस्तान आर्मी का नौजवान मोहम्मद हमीदुल्लाह ड्यूटी के दौरान अपने फराइज सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश कर गया। मजीद बात कर लेते हैं याकूब ताहिर से। ताहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के नवाही इलाका 382 WB में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं कि शहीद के घर पर मौजूद हूँ। कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यहाँ पर मोहम्मद हमीदुल्लाह जो शहीद जो कि 2011 में सियालकोट के साथ एक नूरगढ़ का इलाका है वहाँ पर शहीद हुए। इस वक्त मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कि वो जब आए थे उनकी क्या ख्वाहिश थी और आखिरी बार मिलकर जाते हुए आपको क्या कहकर वो गए हैं। मोहम्मद हमीदुल्लाह शहीद जो है ना जी, वो पहले से ही ख्वाहिशमंद थे कि मैं शहीद हूँगा और मैंने शहीद होना है। 8 साल के बाद वो वहाँ गए और वहाँ शहीद हो गए। उनकी ये अपनी दिली ख्वाहिश थी। ये कैसे शहीद हुए, थोड़ा सा ये बताएंगे हमें, क्या थे वहाँ पर? तो बस वो बताया गया कि वहाँ नूरगढ़ में कोई काम हो रहा था तारों का, बिजली का, वहाँ पे कोई करंट किसी ने पीछे से छोड़ दिया और वो शहीद हो गए वहाँ। जी बिल्कुल, जैसा कि उनके वालिद साहब का कहना यही है कि वो नूरगढ़ के अंदर जो सियालकोट सेक्टर के साथ अंजीज़ कवर के अंदर वो थे, वहाँ पे तैनात थे। वहाँ पर जो है कोई बरकी ये तारी जो है बिजली के तारों का वहाँ पर काम हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल वो सरहदी इलाका था और वहाँ पर छावनी के लिए बिजली की तरसील के लिए वहाँ पर काम हो रहा था। लेकिन वहाँ पर किसी ने खास तौर पर जो कि वहाँ पर बताया जाता है, इनके वालिद साहब का ही कहना है कि वहाँ पर जासूस वगैरह फिरते हैं, तो उन्होंने जो है कि वो उस वक्त जो उन तारों में लाइट नहीं थी, ने ड्यूटी के दौरान जामे शहादत नोश किया। याकूब ताहिर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।